السلام علیکم رضوان بھائی، شکریہ. اور سب سے پہلے تو میں اویس بھائی کا خیر مقدم کرتی ہوں. کافی بیمار ہو گئے تھے، ہم سب بڑی تشویش میں مبتلا تھے. شکر ہے کہ صحتیاب ہو کے آگے. ماشاءاللہ بہت ریزیلینٹ آدمی ہیں یہ. جی میں نے سنا آپ لوگ باری باری آنے والے تھے، اسی لیے میں آگے. دوسرے اقبال بھائی آپ کو بہت مس کر رہے تھے، پاکستان گئے ہوئے تھے. آج آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور میں اپنے تمام نئے مہمانوں کا بھی خیر مقدم کرتی ہوں کہ اردو گھر کی رونقیں بڑھانے میں آپ لوگوں کا بھی حصہ ہوگا. تو ویلکم آپ لوگوں کو. اور دوسرے اب میں اپنی مقالے، چھوٹا سا مضمون ہے. اردو ناول کا موضوع دیکھا جائے تو بہت وسیع ہے، اور ایک نشست میں سارے ناول نگاروں کے ساتھ انصاف کرنا بھی بہت مشکل ہے. تو میں نے ابتدا سے لے کر پریم چند تک اس کو کور کیا ہے. اس کے بعد ترقی پسند تحریک، اگرچہ کہ پریم چند کے زمانے سے ہی شروع ہو چکی تھی، لیکن میں وہاں پہ ختم کروں گی. اور اس کے بعد آپ سارے حاضرین ہیں، اس میں سے جو چاہیں اس ٹاپک کو آگے ٹیک اپ کر سکتے ہیں، یا پھر جیسے آپ کی مرضی ہو آگے کبھی کسی میں. تو اجازت ہو تو میں شروع کروں. آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، صدر مجلس سے آئیں. اردو میں ناول کی صنف انگریزی کے توسط سے داخل ہوئی، جو نثر کی ایک جدید اور ترقی یافتہ شکل ہے. بر صغیر میں اس کی ابتدا 19ویں صدی کے نصف آخر میں ہوئی. اس کے محرکات کو جاننے کے لیے ہمیں اس دور کے سیاسی، معاشی اور سماجی حالات کا جائزہ لینا ہوگا. 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو چکا تھا، اور بر صغیر میں ایک نیا نوآبادیاتی نظام جڑیں پکڑ رہا تھا. یورپ میں صنعتی ترقی کا آغاز ہو چکا تھا، اور یہ بات خود انگریز حکمرانوں کے مفاد میں تھی کہ صنعتی ترقی کے کچھ ثمرات بر صغیر تک بھی پہنچائے جائیں. حاکم اور محکوم ایک دوسرے کی زبان سیکھیں، چنانچہ فورٹ ولیم کالج قائم ہوا اور انگریزی اور اردو زبانوں کی تعلیم کا آغاز ہوا. دوسری طرف انحطاط پذیر معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ضروری تھا کہ عوام کو جدید تعلیم سے روشناس کیا جائے. سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک شروع ہوئی. مذہب کو سائنس اور فلسفے کی روشنی میں جانچنے کی کوششیں شروع ہوئیں، جو جدید عہد کے تقاضوں کا نتیجہ تھی. تہذیب اور ترقی کی راہ پر چلتے ہوئے ادب نے بھی سماجی اثرات قبول کیے. طلسماتی داستانوں اور مافوق الفطرت کرداروں کے لیے کوئی جگہ نہ رہی. نہ شاہی دربار اور عمرہ اور نواب جو ان داستان گویوں کی سرپرستی کرتے. خواب و خیال کی دنیا سے نکل کر حقائق کا سامنا کرنے، مسائل کو سمجھنے سمجھانے اور ایک نئے مستقبل کو تلاش کرنے کی ضرورت تھی. اس طرح ادب کو ایک نئی صنف سے روشناس کرایا گیا جو اس منصب کو بخوبی انجام دے سکتی تھی. خود انگلستان میں انہی حالات میں ناول کا جنم ہوا تھا. ناول کیا ہے، یہ داستانوں سے کس طرح مختلف ہے، اس کے لیے ہمیں ناول کے اجزائے ترکیبی پر نظر ڈالنا ہوگی. ناول اور داستان دونوں ہی کی بنیاد قصہ یا کہانی ہے، لیکن ناول میں حقیقی زندگی کی عکاسی کی جاتی ہے اور قصے کو ایک مربوط پلاٹ کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، جبکہ داستانوں میں مختلف قصے بیان کیے جاتے ہیں جن کا ایک دوسرے سے کوئی ربط نہیں ہوتا. ناول میں مصنف زندگی کے بارے میں اپنے نظریات پیش کرتا ہے، لیکن اس انداز میں کہ قاری یہ محسوس نہ کرے کہ اس پر کوئی خیال یا نظریہ تھوپا جا رہا ہے. مصنف کا نظریہ کرداروں کے عمل اور رد عمل کے نتیجے میں سامنے آتا ہے، اس لیے ناول میں کردار نگاری کی بڑی اہمیت ہے. مختصر یہ کہ ناول حقائق کا آئینہ ہے، جبکہ داستان تخیلاتی دنیا کی پیداوار. اردو میں ناول نگاری کا آغاز 19ویں صدی کی چھٹی دہائی سے ہو چکا تھا، گو کہ اس کی فنی تکمیل پریم چند کے ناولوں سے ہوئی. اردو ناول کی ابتدا میں 4 نام اہمیت رکھتے ہیں: نذیر احمد، پنڈت رتن ناتھ سرشار، محمد ہادی رسوا اور عبدالحلیم شرر. نذیر احمد کا پہلا ناول میرات العروس 1969 میں شائع ہوا. ان کے ناول کی تکنیک بیانیہ ہیں، جس میں مسلمانوں کے متوسط طبقے کی زندگی کی عکاسی کی گئی ہے. ناولوں میں دہلی کی ٹکسالی زبان استعمال ہوئی ہے
ان کی ناولوں کے مرکزی کردار مبلغ اور مصلح ہیں جو بولنے پر آتے ہیں تو پند و نصائح کا ایک دفتر کھول دیتے ہیں۔ نذیر احمد نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہانیوں کی کتابیں اپنے بچوں کے لیے لکھی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میراث العروس اور بنات الناش براہ راست تعلیم نسواں کی تحریک سے وابستگی کا نتیجہ ہے جو انگریز حکام اور محکمہ تعلیم کے باہمی تعاون سے شروع ہوئی تھی۔ ان دونوں ناولوں کے علاوہ توبۃ النسو کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔ بہت سے نقاد نذیر احمد کو ان کے ناول کے سپاٹ بیانیہ کی وجہ سے انہیں ناول نگار ماننے سے انکار کرتے ہیں، لیکن احتشام حسین نے ان کی سماجی بصیرت اور تاریخی شعور کے پیش نظر انہیں اردو کا پہلا اہم ناول نگار تسلیم کیا ہے۔ نذیر احمد کے ناولوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے ناولوں کے کردار اس میں بامسمہ ہوتے ہیں، یعنی ان کے کردار کی خصوصیات ان کے نام سے واضح ہو جاتی ہیں۔ مثلا اکبری بڑی بیٹی ہے تو اصغری چھوٹی، فسانہ مبتلا کا مرکزی کردار جھوٹی شان و شوکت میں مبتلا ہوتا ہے اور دنیا بھر کی برائیوں میں مبتلا دکھایا گیا ہے۔ توبۃ النسو کا کردار پند و نصیحت کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے۔ ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ نذیر احمد نے اپنے ناولوں کے ہر باب کو علیحدہ علیحدہ عنوانات دیے ہیں، جن سے قاری پر واضح ہو جاتا ہے کہ کہانی کس سمت میں آگے بڑھنے والی ہے، جس سے کہانی کا سسپنس ختم ہو جاتا ہے۔ کردار نگاری کے لحاظ سے پرکھا جائے تو میری رائے میں ان کا ناول توبۃ النسو دلچسپی کا حامل ہے۔ نسو کے اپنے بیٹے کلیم کے ساتھ نظریاتی کشمکش خود نذیر احمد کے اپنے نظریات کی عکاسی کرتی ہے، جس میں وہ مشرق کی کلاسیکی شاعری کو مسترد کرتے اور مشرقی اقدار سے متصادم قرار دیتے ہیں۔ کلیم کو شاعری اور فنون لطیفہ سے دلچسپی ہے اور انفرادی آزادی کا قائل ہے، جبکہ نسو ہیضے کی بیماری کے دوران اپنے خواب کے مطابق خاندان کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتا ہے تو اس کی شاعری کی کتابوں کو نظر آتش کر دیتا ہے اور اس کی شاعری کی کتابوں اور فنون لطیفہ کے سامان کو نظر آتش کر دیتا ہے۔ نذیر احمد نے کلیم کا انجام المناک دکھایا ہے، گو کہ نہ تو وہ مذہب سے لا تعلق تھا اور نہ ہی بزرگوں کے احترام سے انکاری۔ نذیر احمد کے بعد دوسرا اہم نام پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ہے۔ وہ اپنے ناولوں سیر کوہسار، جام سرشار اور فسانہ آزاد کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ شہرت فسانہ آزاد کو حاصل ہوئی۔ سرشار کے ناولوں کا موضوع لکھنؤ کی تہذیب، وہاں کی اجتماعی زندگی، لکھنؤ کا جاگیردارانہ نظام، رہن سہن، چہل پہل اور عیش و طرب کی زندگی ہے۔ ان کے ناولوں کے کرداروں میں رمال بھی ہیں اور صراف بھی، شاعر بھی ہیں اور قوال بھی، طوائف بھی ہیں تو مولوی بھی، محل ہیں تو بازار بھی۔ عبدالحلیم شرر اردو کے پہلے ناول نگار ہیں جنہوں نے شعوری طور پر ناول کے فن کو سمجھنے اور برتنے کی کوشش کی اور اس کے اجزاء ترکیبی کا خیال رکھا۔ انہوں نے تاریخ نویسی کی تکنیک کو استعمال کرتے ہوئے تاریخی ناول لکھے۔ فردوس برین کا مشہور ناول ہے جس کا مرکزی کردار حسن بن صبا ہے، جس نے زمین پر اپنی جنت بنائی تھی۔ یہ ناول کردار نگاری اور منظر کشی کے لیے نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ہادی محمد رسوا نے امراؤ جان ادا لکھ کر ناول کی تکنیک کو ایک نیا موڑ دیا اور ناول میں آبیتی بیان کرنے کی روایت کا آغاز کیا۔ یہ ناول لکھنؤ کے انحطاط پذیر معاشرے کی صحیح معنوں میں عکاسی کرتا ہے۔ مرزا ہادی رسوا ناول نگار کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے۔ امراؤ جان ادا کا ہر باب ایک شعر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ لکھنؤ کی ایک شریف گھرانے کی داستان ہے جو اغوا کر کے بازار حسن میں فروخت کر دی جاتی ہے۔ اسی ماحول میں پرورش پاتی ہے، ماحول سے نکلنے کی بار بار کوشش کرتی ہے، اچھے ادبی ذوق کی حامل ہے، لیکن سماج میں شرافت کے ٹھیکیدار اس کو اپنانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مظفر علی سید نے اس کہانی کو بہت ہی خوبصورت انداز میں فلم بند کیا ہے اور اس ناول کے ساتھ پورا انصاف کیا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ فلم ضرور دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی ہے تو ضرور دیکھیں، آپ بہت ہی لاجواب فلم ہے۔ سرشار، شرر اور رسوا کے معاصرین نے بڑی تعداد میں ناول لکھے، لیکن ان میں بہت کم کو شہرت نصیب ہوئی۔
البتہ منشی سجاد حسین نے جو اودھ پنچ کے ایڈیٹر بھی تھے کئی ناول لکھے. ان کا ناول حاجی بقلول مقبول ہوا. یہ ایک مزاحیہ کردار ہے جس کی حماقتیں لکھنؤ کے معاشرے کی پوشیدہ جہتوں کو ہمارے سامنے لاتی ہیں. یہ ناول لکھنؤ کے معاشرے کے رہن سہن، لباس اور معاش اور عقائد کی عکاسی کرتا ہے. یہ کردار اتنا مقبول ہوا کہ اب اس کا نام طنزاً استعمال ہوتا ہے. کسی کا مذاق اڑانا ہوتا ہے ہم اس کو حاجی بقلول کہہ دیتے ہیں. ان کا ایک اور ناول احمق اللذین اب اردو زبان میں محاورے کی شکل اختیار کر چکا ہے. یہ ہے کہ ہم لوگ بھی جب کسی بیوقوف کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں تو ایک لفظ میں احمق اللذینہ کہہ دیتے ہیں، اور کسی کو بے وقوفیوں کو نقاب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس ناول میں سجاد حسین نے پہلی بار برطانوی حکومت کے ظلم و جبر کو اس کے صحیح پس منظر میں پیش کیا ہے. کایا پلٹ اور میٹھی چوری ان کے سنجیدہ ناول ہیں جن میں مزدوروں کے حقوق اور انسانیت کے احترام پر پہلی بار بحث کی گئی ہے. راشد الخیری 1868 سے 1930 کے درمیان حیات تھے. ان کو نذیر احمد کا مقلد اور جانشین قرار دیا جاتا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ نذیر احمد نے عورتوں کے مسائل کو ایک مسئلے کی نظر سے دیکھا، جبکہ راشد الخیری عورتوں کے مسائل کو ایک عورت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد بنا کر حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے ناولوں میں عورتوں کی معاشرتی حیثیت کی پوری سچائی کے ساتھ تصویر کشی کی گئی ہے. سیدہ کا لال اور حیات صالحہ ان کے مشہور ناول ہیں. انہوں نے عورتوں کی تعلیم و تربیت کو خاص اہمیت دی کیونکہ یہی بچوں کی پہلی درس گاہ ہوتی ہے. 20ویں صدی میں پریم چند کا نام افسانہ نگار اور ناول نگار کی حیثیت سے اول مقام رکھتا ہے. انہوں نے زندگی کے نشیب و فراز، غربت و افلاس، تنگ دستی، بھوک، بیماری، بیکاری، بے بسی، کسانوں کی بدحالی، زمینداروں اور ان کے ہرکاروں کے ظلم و جبر اور سامراج کی لعنتوں کو بہت قریب سے دیکھا. وہ سماج میں رائج فرسودہ رسم و رواج سے فائدہ اٹھانے والے مذہب کے ٹھیکیداروں کی چالاکیوں کو بخوبی سمجھتے تھے. انہوں نے اپنے ناولوں میں غیر جانبداری کے ساتھ ہر طبقے اور عقیدے کے لوگوں کی تصویر کشی کی ہے. وہ مذہب کے مخالف نہ تھے لیکن فرقہ پسند عناصر کے دشمن ضرور تھے. ہریجنوں کی زندگی میں کاہلی اور آرام طلبی کا تجزیہ کرتے ہوئے انہوں نے اس کے نفسیاتی پہلو کو پیش نظر رکھا اور بتایا کہ جب انہیں اپنی محنت کا صلہ نہیں ملتا اور دوسری طرف زمیندار بلا محنت سب کچھ حاصل کر لیتا ہے تو پھر ایسی محنت سے فائدہ. اس لحاظ سے ان کے ناول گودان کو جو شہرت ملی وہ کم ہی ناولوں کے حصے میں آئی. اس ناول کا مرکزی کردار ہوری اردو ادب کا لافانی کردار ہے. یہ ہندوستان کے مجبور اور بے بس کسانوں کا نمائندہ ہے جس میں اپنے طبقے کی تمام خصوصیات موجود ہیں. اس ناول کو ڈرامائی شکل میں دوردرشن پر قسط وار پیش کیا جا چکا ہے. موقع ملے تو ضرور دیکھیں اس کو بھی. کچھ اس کے ایپیسوڈ ہیں دستیاب. پریم چند ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو چکے تھے. وہ اس تنظیم کے پہلے صدر تھے اور تحریک کے آغاز کے چند ماہ بعد ہی 1936 میں ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد پریم چند کے بعد سجاد حیدری الدرم، مجنو گورکھ پوری، قاضی عبدالغفار، نیاز فتح پوری اور حجاب امتیاز علی کے نام قابل ذکر ہیں. انہیں عام طور پر رومانوی تحریک سے وابستہ ادیب قرار دیا جاتا ہے. رومانوی ادیبوں کے یہاں ذہنی آزادی، انفرادی عمل، فکر و تخیل کی آزادی، ماضی کا احیاء، اساطیری عناصر کی پیشکش اور خواب و خیال اور تصورات کی دنیا میں کچھ کر لینے کا رجحان ملتا ہے. یہاں پہ میں ختم کر رہی ہوں اس سلسلے کو، اور اس کے بعد ترقی پسند تحریک کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو آپ میں سے جو بھی چاہیں اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اگر میں کرتی تو اس سے پورا اتنے ناول نگاروں کی ایک پوری قطار ہے، اور اگر ان کو صرف چھو لینے سے بات نہیں بنتی، کیونکہ ناولوں میں ترقی پسند تحریک کے دوران کئی تجربے ہوئے. شعور کی رو جو انگریزی ناول میں تھا، اسٹریم آف کانشنس، اس کو جو ہے اردو ناولوں میں متعارف کرایا گیا، جس کی سب سے بڑی نمائندہ قرۃ العین حیدر ہیں. اس کے بعد پھر اور بھی حیض کے علامتی ناول لکھے گئے، اور بھی
جدیدیت کے کئی تجربے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ ترقی پسند تحریک میں جو ناول نگار گزرے ہیں ان کا ایک علیحدہ سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ایک مختصر سی گفتگو میں سب کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکے گا. تو میں اپنا شکریہ. بہت اچھا آپ نے لکھا. سن رہا تھا میں، آپ جو پڑھ رہی تھی تو ایک دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی اس سے متعلق کہ ناول نگاری کی ضرورت کیوں پڑی ہے، صنف کیسے مقبول ہوئی، کیسے متعارف ہوئی، پھر لوگوں نے اس کو یوز کیا اور پھر ایک دم زوال پذیر بھی ہو گئی. جتنی جلدی آئی اتنی جلدی چلی بھی گئی. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آج کل ناول نگاری نہیں ہو رہی، نہ اس طرح کوئی لکھ رہا ہے نہ کوئی اس طرح پڑھ رہا ہے. تو ناول پر مجھے بات میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بالکل انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے، جیسے کسی کے بارے میں کچھ معلوم کرنا، کہانی سننا، ڈرامہ سننا، ہے نا، اپنا سنانے زیادہ دوسرے کے بارے میں معلوم کرنے کا. ابھی تھوڑا سا واقعہ ہو جائے تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے وہ دیکھنے کے لیے کیا ہوا. تو یہ ایک انسانی فطرت ہے. تو اسی سے یہ افسانہ بھی آیا، ناول بھی آئی. شروع میں دیو مالائی قسم کے قصے تھے، اور پھر جیسے ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ جب آئے اس زمانے میں تو وہ ریکریشن کے ساتھ میرا نصیحت بھی آ گئی، اور وہ زیادہ نصیحت ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں نے اس سے کنارہ کشی بھی لگی، اختیار کر لی، مجھے ایسا لگتا ہے. اور پھر وہ اب آج کل اس طرح نہیں لکھے جا رہے، سمبولک افسانے ہیں اس کی جگہ آ گئے، ایبسٹریکٹ وہ افسانے ہیں، وہ افسانے لکھے جاتے ہیں چھوٹے موٹے. اب اتنا ٹائم بھی نہیں رہا لوگوں کے پاس کہ میرے خیال ہے اتنی موٹی موٹی کتابیں ناولیں پڑھیں. اور پھر وہ ناول کی جو ٹیکنیک ہے اس میں اتنے کردار ہیں، ان کو ایک وقت میں یاد رکھنا ہے، ایک سیٹنگ میں، پھر ان تمام کرداروں کے ساتھ انصاف کرنا، وہ چیز بھی ہم بڑی مشکل ہو گئی ہے، وہ اتنا وقت نہیں ہے. میرے خیال میں جو مختصر بات دو جملے کی میں کروں کہ اس میں ناول نگاری میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو پلاٹ اور وہ کریکٹر. چلو ٹھیک. پلاٹ کی جگہ کسی اور پلاٹ نے لے لی ہے ہمارے یہاں لکھنے والوں نے، اور کریکٹر تو ویسے ہی نہیں رہا. تو وہ یہ اسی وجہ سے میں خیال ہے ناول نگاری بہت جلدی زوال پذیر ہے. جی بات. اعوذ باللہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں انتہائی دل خوش کن کہ میری یہاں آمد کے بعد مجھے لگا کہ کافی عرصے بعد باوجود آنا ہوا ہے تو بہت خوبصورت و بہتر تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. خوبصورت چہرے بھی زیادہ نئے بھی نظر آئے ہیں، ترتیب بھی اور موضوعات بھی اور پروگرام کا طریقہ بھی. تو اس کے لیے میں یقیناً ڈاکٹر عامر سلمان اور آپ سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور ترقی دے. یہ جو سلسلہ ہمارا شروع ہوا تھا اور ہوا ہے وہ میں کوئی دہرانے کی بات نہیں، لیکن بات ساری یہی تھی کہ یہ اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کامیابی کے کہ یہ کوئی ہم نے تنقیدی یا مباحثے کا فورم نہیں رکھا تھا کہ بات ہو رہی تو بحث شروع ہو جائے یا کوئی کسی تنقید کرے. تو اسی لیے یہ باقاعدہ رولز ریگولیشن ہی بنایا گیا کہ آپ اپنے خیالات کو شیئر کریں، اشتراک خیال اور ایک دوسرے سے معلومات شیئر کریں. اور اس میں تو وہ چیز الحمدللہ ٹھیک چل رہی ہے کہ انسان نفسیات ہے کہ مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگ تردیدی مزاج ہوتا ہے، کوئی کچھ بھی کہے اس کو منع کریں گے، بعض لوگ شک کی. تو وہ سب ختم کر دیا گیا یہاں کہ باری باری. اور دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کان اور 1 منہ اس لیے دیا ہے کہ سنیں زیادہ بولیں کم. تو آپ 5 منٹ بولیں باقی اتنے منٹ سنیں. یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے، انسانی تربیت کا جو کوشش کی یہاں پر جو الحمدللہ سب نے قبول کی ہے ہو رہی ہے. بہرحال آج کا موضوع کے لحاظ سے میں صرف بہت خوبصورتی سے انہوں نے تجزیہ کیا ہے، اچھے زبان و بیان کے ساتھ بھی. اور ماضی سے ہم جب
मालूमात करते हैं, देखते हैं, तो आज हम देखते हैं तो उससे मुस्तकबिल की सूरत गरी में आसानी होती है, ताकि एक हम दोबारा पहिया ना ईजाद करने लग जाएं, हमें मालूम होता है क्या कुछ हो चुका है। तो इस तरह से जो हमारे मौक़िन हैं हमारे साथ, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर वो मेहनत करके आते हैं, उसको संजीदगी से लेते हैं और संजीदगी से कलम बंद करके और पेश भी करते हैं और सब संजीदगी से सुनते हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है इस हमारे फोरम की। नावल का सिलसिला ज़ाहिर है कि हम और आप सब जानते हैं, उसमें कोई दोहराने की बात नहीं कि इंसान का हम जो बात, मैं ज़ात और हम भी जो बात करते हैं उसको पुरानी अगर कोई बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो बात आज से रिलेट कैसे करती है, और न करना बेकार है। या ये कि अगर वो आज नहीं तो उमूमी तौर पे इंसानी फितरत से कैसे रिलेट करती है। दो बातें ज़रूरी हैं तो ताकि हम पता चले कि हम उसके साथ किस तरह जुड़े हैं उस मौजू से। तो नावल ज़ाहिर है कि बुनियाद तो हम सब जानते हैं कि हर इंसान जो है जो मलाई अहद से और हर कल्चर में हर जगह किस्से और कहानी का शौक़ सबको होता है, कहने का नहीं तो सुनने का ज़रूर होता है। हर आदमी दिलचस्पी रखता है। हमारी मजहबी किताबों में भी क़सस से काम लिया गया इसीलिए कि ताकि लोग उसके ज़रिए ही चीज़ें हासिल करें। तो वो किस्से का सिलसिला और दास्तान जिसे हमारे यहाँ लफ्ज़ दिया था वो दिया जाता था, और वो दास्तान का सिलसिला अजीब व गरीब ये था कि दास्तानें तहरीर कम होती थी, सुनाई ज़्यादा जाती थी। बाकायदा दास्तान गो होते थे। मुझे याद है कि पाकिस्तान में आए थे मीर बाकर अली दास्तान गो, पूरा नाम उनका यही था। महफिल होती थी वो दास्तान शुरू कर देते थे। दूसरे जहलुम में चौसदनशाह एक जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। पाकिस्तान टीवी की पहली रंगीन डॉक्यूमेंट्री वहाँ मैंने बनाई थी। वहाँ पर एक ख़ानदान है, भाट ख़ानदान कहलाता है। उनकी ये खूबी है कि वो अब से लेकर कदीम तरीन तक की लोगों के शजरे उनको पता है। कि मैं अपना नाम बताऊँ आए तो वो खड़ा होकर दरख्त नीचे बाकायदा एक लहन के साथ शुरू कर देता था कि यूँ है यूँ है यूँ है। तो ये इंसान दिलचस्पी होती है सुनना कोई चीज़ है जो तारीख़ी तौर पे कहानी की सूरत में आ रही है। तो दास्तान गो का सिलसिला चल रहा था, लेकिन ज़ाहिर है कि ब्रिटिश राज में जब अंग्रेज़ी ज़बान और अदब आया तो लोग उस तरह मुतवज्जह हुए। तो उर्दू ज़बान का तो मसला ये है कि इसकी हर सिम बाहर से आई है, चाहे वो गज़ल हो, चाहे नज़्म हो, चाहे नस्र में भी और शायरी में भी। तो नस्र में भी ज़ाहिर है कि वहाँ की चीज़ें आई हैं। अंग्रेज़ी में ऐसे लिखे जाते थे तो सर सैयद ने मजमून लिखा तो आगाज़ हो गया, यानी एक मिसाल के तौर पे। तो इसी तरह नावल भी वहाँ से लिया गया, और नावल रॉबिन्सन क्रूसो पहले से और जब से भी लेके बहरहाल। लेकिन बाज़ औक़ात चीज़ें ज़रूरतन हो जाती हैं। अब डिप्टी नज़ीर अहमद जो थे वो उस अक़दार के हामिल थे कि बहुत ज़्यादा अपनी तहज़ीब को मुज्तमा रखो, अगर ज़वाल पज़ीर हो तो रोको, और स्पेशली बच्चियों को एजुकेट करो कि अपनी तहज़ीब अक़दार से जुड़ी रहें। तो उन्होंने वो मकसद जहन में रख के कि वो कैसे बच्चों को बैठ के क्या बताएं, तो उनका उसको हम मैं लिख दूँ। तो उन्होंने अपने हिसाब से उस अक़दार की तहज़ीब करने के लिए एक तहरीर लिखी। अब ये उनको भी नहीं पता था कि बाद में उन्हें बाज़ हलकों में पहला नावल निगार करार दिया जाए। सब नहीं मानते लेकिन बाज़। तो वो बहरहाल आया है और वो लिखा गया, और उसके बाद सरशार भी आया, लेकिन अब्दुल हलीम शरर। तो इन दो में हमारे नाक़दीन डॉक्टर फरमान साहब भी, अली अब्बा हुसैनी भी, जितने हमारे नावल के पहले नक़्द अदब के लोग हैं वो इस तरह करते हैं कि अब्दा ये दो हैं, कोई कहता है ये पहला दूसरा, लेकिन बाल बाल ये इस तरह से है। तो वहाँ से ये जब आगाज़ हुआ तो जाहिर है कि ये आगाज़ के साथ साथ एक अच्छी बात ये हुई कि ये सिंध जहाँ से ली गई थी वहाँ पर ज़ाहिर है बहुत काम हुआ था। तो वहाँ के जो अच्छे नावल थे वो तर्जुमा भी हुए हमारे यहाँ उर्दू में। तो उससे भी लोगों को सीखने को मिला, और नावल से आगाही भी हुई कि नावल क्या होता है। तो जिस तरह भी आपने बताया कि फिर ये हमारे जितने लोग थे, और स्पेशली फिक्शन अफसाने का तो मामला था, तो अफसाना निगार बिलुमूम उनके क्रेडिट में नावल भी मौजूद है। हम बाद लोगों को इग्नोर हो जाता है कि नावल भी लिखा था या नहीं था। तो वो सिलसिला उस तरह से मुनज़बत तौर पे नावल यानी नॉवेल्टी के साथ कोई चीज़ बिल्कुल नॉवल चीज़ हो, और वही अज़ाय तरकीबी शुरू में लिया गया, बाद में डेविएट भी हुआ कि जी वो कहानी भी होना चाहिए, और प्लाट भी होना चाहिए, और किरदार निगारी भी होना चाहिए, मुकालमा निगारी भी होना चाहिए, मंजर कशी भी होना चाहिए, और एक नुक्ता नज़र भी होना चाहिए, और मजमूई तौर पे उसका कैसे मौसम, वो सारे उसी तरह से लिए गए। लेकिन वक्त के साथ साथ मौज़ूआती एतबार से नावल लिखे जाने लगे, जो हम सब जानते हैं। तारीख़ी नावल, जासूसी नावल, इस्लाही नावल,
वो एक शोबा बनता गया जो लोग अपने अपने मिजाज के हवाले से हम देखते हैं। हमारे दौर में अदब हमेशा एक तो मेन स्ट्रीम रही है अदबी सतह और एक आम आदमी की रही है। तो आम आदमी सतह पे हम जानते हैं कि नसीम मजाजी और इब्न सफ़ी कैसे मकबूल रहे। वो जासूसी मौजू पे नावल लिखते थे, वो तारीख़ी मौजू पे लिखते थे। और अदबी सतह पर जो तजुर्बे हुए हैं उसमें सभी ने जिक्र किया कि वो यूलिसस पहला था और वहीं से लिया गया कि वो शऊर की रो कि जिस तरह से ज़मानी मकानी क़ैद के बजाय आप उसी तरह लिखते तो आग का दरिया बड़ा उसका नमूना है। बाद में औरों ने भी उसके तजुर्बे किए हैं। तो नावल में तजुर्बे होते रहे हैं, लेकिन वह साहब ने सही कहा कि उस नावल की तरफ शायद वक्त की तेज़ रफ्तारी की बिना पे वक्त नहीं रहा लोगों के पास, और ज़ाहिर है कि उसी तरह से किताब से मोहब्बत उम्मी तौर पे भी कम होती चली गई मीडिया और डिजिटल दुनिया के तौर पे। नावल का सिलसिला कम होता गया, लेकिन अभी भी दुनिया में नावल लिखे जा रहे हैं और उर्दू में भी गाहे गाहे नावल आता रहता है। और वो नावल अगर उसमें जान होती है तो अहले नक़्द व अदब की कम से कम हल्के में उसकी पजीराई होती है। तो इतना मतलब ये है कि बिल्कुल ही मायूस कुन बात नहीं है, ये काम हो रहा है और ये बहुत अफेक्टिव सिनफ है। और आज भी आदमी जो है सिर्फ रिटायर आदमी नहीं, वैसा भी आदमी जब कोई नावल लेके बैठता है और वो उसमें तमाम चीज़ें होती हैं ऐसी, तो वो उसको पढ़ता भी है और वक्त होता तो एक नशिस्त में ही पढ़ना चाहता है। तो ये इस सिनफ का मुस्तक़बिल जो है वो तो हम बिल्कुल मायूस तो नहीं कह सकते, लेकिन कम ज़रूर हुआ है। बहुत शुक्रिया मलिक। मेरा तकिया कलाम नहीं इस्तेमाल करूँगा। नहीं, मेरे दो सिर्फ छोटे छोटे सवालात हैं। पहला सवाल तो ये कि जैसे आपने एक पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप जब भी मजमून पढ़ती हो बहुत ज़बरदस्त होता है, वो एक दावत और फिगर दे देता है हम सब तालिब इल्मों को। मैं बहुत ये लाइफ है तहसील इक़दाम है आपका। एक सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने 4 नाबिल निगारों का तस्करा किया, उनके नफ्स मजमून पर ख़ास तौर पर आपने एक गहरा तबसरा किया कि माशरे की इस्लाह और इस तरह की मुस्बत सोच, तो क्या ऐसे नाबिल निगार हमें इस वक्त अहद जदीद में नज़र आते हैं तो वो कौन से हैं जो हम जैसे तालिब इल्म जिनको पढ़ सकें? पहली बात। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने तरक्की पसंद तहरीक का तस्करा किया। हमने अपने असातिज़ा से सुना कि हुसैन अख्तर रायपुरी, राइट, उनका एक मजमून था अदब और ज़िंदगी, तो वो उसके कुछ असरात मुरत्तब हुए थे क्या उर्दू नावल निगारी पे, या बाद में उसके क्या नताइज निकले? तो बस जब जो कोई भी इस पर तबसरा करना चाहे, बस मेरे ये 2 सवाल। चलिए डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है कि हमारे गुफ्तगू में भी आई थी बुशरा रहमान, तो आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि लोग अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो चीज़ों को एक इंतहाई एक्सट्रीमिज़म के अंदर उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रोजेक्ट किया है कि चीज़ों को तदब्बर से हल किया जाए और उनकी एक रियल लाइफ मिसालें दी। तो अगर आजकल के दौर में बात करें तो नावल नगारी के अंदर मैं ख्याल बुशरा रहमान ने आपके सवाल का एक जवाब मैंने दे फ़ौरन ही आपने पूछा। दूसरा नावल नगारी के हवाले से मैंने सोचा कि बेशुमार गुफ्तगू हुई है, मैं थोड़ी सी तारीख़ी जो है इस्लामी तारीख़ के हवाले से जो नावल लिखे गए हैं उन पर बात करूँ। तो सबसे पहले तो मैं नसीम एजाज़ी साहब का जिक्र करूँगा। नसीम एजाज़ी साहब जो हैं वो अल्लामा इक़बाल के बहुत मुतासिर थे, जिस तरह के डॉक्टर असरार भी कहते हैं। उन्होंने अपने नावल नगारी के अंदर 3-4 चीज़ों को फोकस किया और उनका एक लगता है एक ब्रॉडर मकसद था कि मुसलमानों को या अहले पाकिस्तान को जो मुमासलत है उनकी पिछली चीज़ों से उससे किया जाए। उनके कुछ नावल जो कि थोड़ा थोड़ा गुफ्तगू करता जाऊँगा। आखिरी चट्टान जो है वो बात करता है चंगेज़ खान के आने की और उसने किस तरह मुसलमानों को अफेक्ट किया और क्या क्या नादानियाँ हुई, और बड़े सटल मैसेज देता है। जिस तरह के खारज़म शाह है उसके अंदर, उसके बाद बगदाद की मुसलमानों की बेहिसी, और वो एक तरह से एक मुमासलत ड्रॉ करता है हमारे करंट माशरे के साथ। उसके बाद उनका एक बहुत अच्छे जो 2 नावल्स हैं उनकी सीरीज़ है, एक मुअज़्ज़म अली और उसके बाद और तलवार टूट गई, और वो बिल्कुल जो बड़े ज़गीर में जो टर्मोइल हो रहा था और उसमें मुख्तलिफ लोगों के जो अपने ख़यालात थे उसका जिक्र करता है। तो वो स्टार्ट करता है जंग प्लासी से और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता पानीपत की तीसरी जंग ऑल द वे टू टीपू सुल्तान 1755 से लेके कोई 1799 तक जब टीपू सुल्तान का दौर है। और वो एक्चुअली बड़ा खूबसूरत उसकी अक्कासी करता है
کہ کس طرح کہاں، اور بالکل کوئی اس میں وہ اس کا انداز نہیں جس طرح توبۃ النساء میں منشی ڈپٹی نذیر احمد کا، اس میں بالکل ہلکے ہلکے ان کے کردار جو ہیں وہ آتے ہیں اور آپ کو مماثلت کرتے ہیں، آپ کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ تیسرا میرا خیال ہے نسیم حجازی صاحب نے اسپین کی جو ڈرا کی ہے مماثلت ہندوستان کے ساتھ، وہ بڑی قابل ذکر ہے۔ ان میں ان کا پہلا ناول تاریخی اعتبار سے یوسف بن تاشفین، جو اس دور کا ذکر کرتا ہے جب مسلمانوں بنی امیہ کی حکومت تھی پہلے اسپین میں، اس کے بعد طوائف الملوکی کہہ لیں مختلف حکومتیں قائم ہو گئی، اور تقریباً 1050 کے لگ بھگ مسلمان ایک بہت بڑے ڈاؤن ٹرن کے اندر آ گئے تھے۔ اس کے بعد کس طرح یوسف بن تاشفین نے موراکو سے آ کے اس ساری چیز کو، جنگ زلالہ کا ذکر، اور اس میں کئی تاریخی حوالے بھی ہیں، اس کے حوالے سے میرا خیال ہے بڑی اچھی گفتگو ہے۔ اس کے بعد ان کا جو اگلا ناول ہے شاہین، وہ بات کرتا ہے جو 1492 کے بعد جو سقوط غرناطہ ہوا اس کے حوالے سے بات کرتا ہے اور اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جس طرح اس کا ہسپانیہ تو خون مسلم کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری بعد سحر میں۔ تو ہسپانیہ کا پورا پس منظر ڈرا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد بڑا ایکچولی اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہے تو بڑا خوبصورت اس کا اینڈ دیتا ہے وہ، کہ 1450 کے اندر مسلمانوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا اور 1492 کے اندر سقوط غرناطہ ہوا، جس سے ایکچولی پوری ورلڈ ہسٹری چینج ہو گئی۔ اس کے بعد امریکہ کے اندر کولمبس آیا، تو بڑا اس کو وہ صحیح طرح کہتا ہے کہ ترک جو تھے انہوں نے انٹروین کرنا چاہیے تھا۔ ہم لوگوں نے تو یہ سبق نہیں سیکھا، مگر دوسری معاشروں نے یہ سبق سیکھ لیا، تو وہ بہت جلدی انٹروین کرتے ہیں۔ تو یہ میسج اس میں بڑا براہ راست ہے۔ اس کے آخری 2-3 پیراگراف پڑھیں اس ناول کے تو بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ ترک اس وقت بڑے آرام سے غرناطہ میں انٹرونشن کر سکتے تھے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بٹ دے چوز ناٹ ٹو ڈو اٹ۔ اچھا، ان کا پھر ایک اور ناول جو جس کی فلم بھی بنی ہے، جو کہ ایک بڑی اس کی کئی لکھی گئی ہیں، رپورٹاج بھی ہیں، مگر 1947 کے اندر جو ہوا، اور ان کا ناول جو خاک و خون ہے وہ اس کو ایڈریس کرتا ہے، اور گرداسپور کے اندر کیا ہوا، اور جو وہ پس منظر اور جو وہ خیالات دیتا ہے وہ آج بھی ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا وہ گرداسپور سے ریلیٹڈ ہے۔ تو تاریخی ناول کے حوالے سے میرا خیال ہے نظیم حجازی نے بہت۔ ایک اور جو ناول جو کہ برامکا کے اوپر لکھا گیا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ناول ہے، اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھا تو وہ جعفر برمکی اور ہارون الرشید اور خاندان برامکا اور ہارون الرشید کا پورا غور بیان کرتا ہے، اور اس میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں، مگر جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ تحمل سے، بردباری سے چیزوں کو ہینڈل کرنا جو ہے بہتر ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کل کے دور کے اندر آپ کی بات صحیح ہے کہ لوگوں کا اٹینشن سپین کم ہو گیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناول کی ضرورت کم ہو گئی ہے۔ کئی لوگ جو ہیں، جس طرح بشرا رحمان آئی ہوئی تھی، کئی لوگ جو ہیں وہ کنیکٹ کر جاتے ہیں اپنی موجودہ صورتحال سے ناول کے ذریعے، جبکہ ایک مشکل شعر یا افسانہ جو ہے وہ کئی دفعہ کچھ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ خاص طور پہ ہمارے حوالے سے نارتھ امریکہ میں ہمیں ناول ایکچولی لکھنے چاہیے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ہمارے پاس اتنی کہانیاں ہیں لوگوں کے پاس جو امریکہ کے اندر آئے اور اس کی کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے۔ تو آج سے 50 سال پہلے ہمارے بچوں کو شاید پتہ بھی نہ چلے کہ ہم لوگ کون تھے اور ہم لوگوں نے کتنی مشکلات کا یہ۔ اور اسی کے ساتھ جو میں اردوگر کے حوالے سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ٹیم کریں۔ جس طرح وقت نہیں ہے ایک بندے کے پاس، تو جس طرح مثال کے طور پہ شیخ اعجاز بھائی، اقبال بھائی، ایک بندہ اپنی کہانی بیان کرے اور ایک اس کا ایڈیٹر ہو، اور ہم اس میں لکھیں، اور اگر اس کی ڈاکیومنٹیشن نہ ہو تو ہو سکتا ہے کل ہمارے بچے کہیں کہ ہمارے جو والدین آئے تھے وہ بڑے آزاد خیال، ایک بھی ڈاکیومنٹیشن نہیں۔ تو امریکہ کے اندر جو مسلمانوں کا پورا اس کی کوئی بھی ڈاکیومنٹیشن اس وقت نہیں، تو اور کل ہو سکتا ہے 75 سال بعد ہمارے بچے کہیں گے ہمارے تو بڑے آزاد خیال والدین تھے، ہم کو پتہ نہیں کس مصیبت میں ڈال دیا، وہ لوگ تو ڈانس کیا کرتے تھے، ان کی پکچرز میرے پڑی ہوئی ہیں۔ تو ان کے معاشرے کی، آج کے اس معاشرے کی عکاسی اور جس کشمکش سے ہم گزر رہے ہیں، میرا خیال ہے اس کی ڈاکیومنٹیشن بھی بہت ضروری ہے،
हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए। और हम अगर इंग्लिश में नहीं लिख सकते, उर्दू में लिखें और कोई इसको कल ट्रांसलेट कर देगा। मगर वो जो पूरी एक कश्मकश है जिससे हम गुजर रहे हैं, ये ट्रम्प का एरा, ये किस तरह अफेक्ट हो रहा है, कितने मुश्किल डिसीजन लोगों ने लिए हैं इमिग्रेशन के लिए, किस तरह लोगों ने अपनी ज़िंदगी का कोर्स चेंज कर दिया है, किस तरह लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ किया है हेल्थ केयर के लिए, ये सारी चीज़ें बड़ी रियल है और इनमें से एक एक कहानी है और इनको लिखा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। इशरत भाई, ओंकार जी, आप इतना क्लोजअप लेंगे तो फिर मेरी झुर्रियाँ आ जाएंगी। दूर रखिए थोड़ा, मैं जवान लगूँ। तो आपने पहले तो आपने मैडम हमारे जो हैं सदर हैं जो, उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत के साथ और बहुत अच्छा लिखा, कि काबिल तारीफ़ है। उसके बाद इकबाल भाई ने अपने वैस साहब ने जो उन्होंने हमें बहुत इस बात का फ़ख्र है कि वो इतने बीमार होने के बाद भी उनकी याददाश्त इतनी अच्छी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, शेर बन गया हूँ। माशाल्लाह। फिर उसके बाद आमिर साहब ने भी कुछ अपना एडिशन की। मैं थोड़ा मुख्तलिफ हूँ इन सब चीज़ों से। पहली बात तो ये है कि मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि जो आपने डेट्स दी हैं नावल तब शुरू हुआ। हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं प्री पार्टीशन हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, वहीं से कहीं से निकले हैं। हिंदुस्तान में फारसी या अरबी जो हैं वो 7वीं 8वीं सदी के बाद आई। जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं जिसमें बाद में इंग्लिश टुक ओवर एवरी अदर थिंग, वो 13वीं और 14वीं सदी के बाद आई है। उससे पहले हम क्या करते थे? उससे पहले ना तो हिंदी थी ना उर्दू थी। उससे पहले जितनी लैंग्वेजेस थी दे वर बेस्ड ऑन संस्कृत। अब अगर आप संस्कृत में जाएं तो सबसे पहला नावल जो कि दिल्ली के म्यूजियम में पड़ा हुआ है वह 1200 BC, उसका नाम है सुशर्त, मीन्स उसका जिसका उसमें जो संस्कृत से अगर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो गुड वुमन, उसको लेके शाहरुख खान को और एक और एक्ट्रेस को लेके उस पर अभी मूवी भी बनी है। मूवी का नाम था कहानी। तो वो अब तक वहाँ पे है। अगर आप वर्ड नावल को संस्कृत में ट्रांसलेट करें तो वर्ड निकलता है उपन्यास। आप में से किसी ने सुना है कि नहीं सुना? मुझे नहीं पता। ये हमारी हिस्ट्री है। मैं अब हिस्ट्री में जा रहा हूँ थोड़ा सा। अब उपन्यास का मतलब एक किस्म की कहानी है जिसका रियलिटी के साथ कोई कंसर्न नहीं है। ये जो रियलिटी जिसमें कि आमिर भाई कह रहे हैं कि ये डालो कि ट्रम्प क्या कर रहा है, ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स आ जाते हैं। उपन्यास जो है वो टोटल फिक्शन है। अब अगर आप संस्कृत में जाएं तो फिक्शन और उपन्यास एक ही शब्द है, एक ही वर्ड है, एक ही लफ्ज़ है। यानी कि जब आप उपन्यास लिखेंगे, जब आप नावल लिखेंगे, वो उसका रियलिटी से कोई कंसर्न नहीं है। वो एक लिखने वाले की अपनी एक कहानी है, वो उसको बना के लिख रहा है। अगर आपने उसमें हिस्ट्री डाल दी है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स डालने हैं, तो वो नावल नहीं रहा, वो कुछ और हो गया। अगर आप हमारे जितने अब ग्रिशम नावल लिखता है इंग्लिश के, आजकल के कह रहा हूँ, हैरल्ड रॉबिन लिखता था और 1000 लोग लिखने वाले हैं जिनकी जेम्स हेडली चेज या फिर वो ले लो जो जिन्होंने जासूसी नावल लिखे हैं, एगाथा क्रिस्टी को ले लो। उनका रियलिटी से कोई का ताल्लुक नहीं होता था, नॉट इवन 1%। दे वर टोटल फिक्शंस, वो थे नावल। अगर आपने उसमें जैसे ही आपने उसमें हिस्ट्री के फैक्ट डाल दिए, कभी भी आप फैक्ट जो हिस्ट्री के डाल सकते हो वो बिना अपने बायस के नहीं डाल सकते। ये प्रूवन फैक्ट। जो भी हिस्टोरियंस होते हैं वो हिस्ट्री लिखते हैं
वो अपने बायस के साथ लिखती हैं। जैसे ही आपने उसमें हिस्ट्री के फैक्ट्स डालने शुरू कर दिए तो उसके बाद वो नावल नहीं रहा, वो तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो गए, आपने उनका एक किस्म का तस्करा कर दिया। अब ले लें आप नावल को, तो नावल हिंदुस्तान में, मैं पुराने हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, बहुत देर से लिखे जा रहे हैं। अब जैसे कि ये अभी अभी एक मूवी आई थी जो कि खिलजी के ज़माने की लिखी हुई थी, पद्मावती उसका नाम था। उन्होंने उसमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई कि हिंदू लोगों को तकलीफ हो गई, उनको कॉन्स्टिपेशन हो गई, तो उन्होंने उसका नाम बदल के पद्मावत रख दिया। तो लेकिन वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्ट्री का उसमें मेंशन है, लेकिन टोटल फिक्शन है, एब्सोल्यूट फिक्शन। कभी पद्मावती नाम की कोई औरत थी ही नहीं। इसी तरह से हिंदी के और नावल हैं जिनमें से एक आता है पृथ्वीराज चौहान, टोटल फिक्शन, जो कि अगेंस्ट मोहम्मद गौरी के वो लड़ा, अंधा हो गया, उसने आवाज पे तीर चलाया। मोहम्मद गौरी तो मरा ही नहीं था हिंदुस्तान में, वो तो वापस जाके ईरान में मरा था। तो ये बातें जो वो नावल हैं, वो दे मे टेक द बेस ऑफ द हिस्ट्री बट दे आर नेवर फैक्ट्स, दे आर नॉट हिस्टोरिकल फैक्ट्स। उनको वो श्रृंगार देने के लिए, उनको वो अलंकार देने के लिए, जो कि संस्कृत के वर्ड हैं, उनको वो थोड़ा रोशन करने के लिए, जो कई बार जो राइटर्स हैं वो अपना हिस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हिस्ट्री के फैक्ट्स लेके, ताकि लोग उनको सच समझें और उन पे ज़्यादा प्रमोट हो जाए। जैसे कि एक नावल है इंग्लिश का, हंट फॉर द रेड अक्टूबर, उसमें उन्होंने एक ऐसी सबमरीन का नाम को दिखाया है जिसके चलने की कोई आवाज़ नहीं है। उन्होंने उसको हाइपर ड्राइव का नाम दिया, हाइपर ड्राइव। ऐसी चीज नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ना तो साइंस में है ना भी उसका कोई, लेकिन उसने पूरा उस पर नावल लिख दिया। अगर हाइपर ड्राइव निकाल दो तो रेड अक्टूबर नाम की सबमरीन का होना ज़रूरी ही नहीं है, समझे ना। तो वो नावल है। उसने बाकी की जो चीज़ें ली वो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, लेकिन एक दो चीज़ों ने उसमें उसने फिक्शन डाला है। अब फिक्शन को हम क्या कहते हैं उर्दू में? अफसाना। अफसाना निगारी और नावल निगारी एक दूसरे के बहन भाई हैं। नावल वो है जिसमें कि एक आदमी लेके कुछ फैक्ट्स को लेके, कुछ फिक्शन को लेके ऐसा मंजर पैदा करता है आपकी आंखों के आगे लफाजी के साथ कि आप जब उसको पढ़ रहे हैं तो आप वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ वो चाहता है कि आप ऐसे होना चाहिए। और वो जितना अच्छा कर सकता है उतना नावल फेमस हो जाता है। नावल कहाँ से शुरू हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन उसका जो पहला सबूत हमारे कल्चर में मिलता है वो 1200 साल बिफोर क्राइस्ट हमें मिलता है। वो आज भी हिंदुस्तान के म्यूजियम में दिल्ली में रखा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था कि अगर हम लिखते हैं उसको नावल का शेप देंगे, जैसे ही आप उसको आप ट्रंप के बारे में लिखें या आप कोरोना वायरस के बारे में लिखें, जैसे ही आप उसको लिखना शुरू करेंगे, अगर आपके पास टोटली टेस्टेड फैक्ट्स नहीं हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको अपना बायस डालना पड़ेगा। जैसे ही आपने उसमें बायस डाला तो वो फैक्ट्स नहीं रहे, समझे ना। तो उनका फ़ायदा आगे जाके क्या होगा, या तो वो मिसलीड करेंगे आगे वाले पढ़ने लोगों को, या वो जिसको हम मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, या वो करेंगे उनके अगेंस्ट और फैक्ट्स मिलेंगे आपको, तो आप उसको अपने दिमाग में रद्द कर दोगे कि भाई ये तो इधर भी फैक्ट्स हैं इधर भी फैक्ट्स हैं, किसको माने, दोनों को छोड़ो, जो कि आमतौर पे होता है। जो नावल है और जो आज का सक्सेसफुल नावल है वो टोटल फिक्शन है, उसमें एब्सोल्युटली देयर इज जीरो रियलिटी, क्योंकि वो चाहे आप जब 1984 लिखा गया था
जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था, उसने 50s में लिखा था जी। कम्युनिज्म के डर से। आज वो सच हो रहा है, लेकिन जब उसने लिखा था वो टोटल फिक्शन था, एब्सोल्यूट फिक्शन। इसी तरह से वो जो किताब है जो कि बहुत फेमस हुई है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, आज वो सच हो रही है। आज हम वो ही सब कुछ देख रहे हैं जो जिसका उसने हमें डर दिया था। हजारों नहीं करोड़ों अरबों कैमरे आज हमें वॉच कर रहे हैं। हम ब्रेव न्यू वर्ल्ड में बैठे हैं आज। लेकिन जब वो लिखा गया था तो कैमरे का तो तस्वीर ही नहीं था किसी के ख्याल में कि ऐसे कोई कैमरे भी लगेंगे, ये वो होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास, हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में नावल बहुत देर से है, लेकिन वो हाथ से लिखे जाते थे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। वो हाथ से लिखे जाते थे, उनकी तादाद 4 या 5 होती थी। लोग अनपढ़ थे, उनको पढ़ के सुनाया जाता था। अब पढ़ के सुनाने वाला भी कई बार उसमें घुंडी मार जाता था, वो जो अपना बायस भी डाल देता था, समझे ना, क्योंकि कई चीज़ें समझ नहीं आई तो उनका समझा दी तो उसने अपना बायस समझा दिया। लेकिन रीज़न ये था कि जब तक छापाखाना नहीं आया, जब तक प्रेस नहीं आई, नावल वॉज नॉट समथिंग के पब्लिक के हाथ में आ जाए। जो आपने दी हैं डेट्स, वो छापाखाना आने के बाद की है। तो वही अफसाने छापाखाना आने के बाद फिर हाथों हाथ बिकने लग गए। यहाँ तक कि मैंने अब कोई क्लोज टू 180 जासूसी दुनिया पड़ी हुई हैं, उनमें से 179 अभी तक मेरे दिमाग में है। एक रह गई। एक भूल गया मैं। तो ये बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता था कि नावल हमारे पास बहुत देर से है। हमारी संस्कृति वो है जो आज से 5000 साल पहले हमारे पास यूनिवर्सिटी थी, टेक्सला के नाम से यूनिवर्सिटी थी, जहाँ से लोग जो हैं वो अफगानिस्तान से लेके चीन से अफगानिस्तान से लेके लोग वहाँ पे आके पढ़ने के लिए आते थे। वो ट्रू यूनिवर्सिटी थी। तो वो वी हैड नॉवेल्स बिफोर। ये था कि छापाखाना होने की, हाथ से लिखे जाने की वजह से वो पब्लिक नहीं थे, तो उनके बारे में इतना हम सुनते नहीं हैं। थैंक यू वेरी Very nice. बस बहुत अच्छा लगा, बहुत ही थोड़ा सा मतलब तारुफ करा दीजिए अपना, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं। मेरा नाम शायर भी हैदी है, और मुझे कभी ये जोम नहीं रहा कि मैं शायर हूँ। कि शायरी जरिया इज्जत नहीं मुझे, लेकिन थोड़ी बहुत बंदी कर लेते थे। उसके बाद 88 में मैंने हज किया था। उसके बाद मैं तो नात की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हो गया। तो वो जब नातें बहुत ज़्यादा हो गई तो हमने एक मजमुआ छपवा दिया कैफ़े दवाम के नाम से। और दूसरा भी जब जाऊंगा वापस तो देखेंगे चलो। तो बाकी ये जो बहस है कि अदब बराए अदब या अदब बराए ज़िंदगी, तो ये हमेशा से रहा है, और अदब का ताल्लुक़ ज़िंदगी से ही रहा है, वो किसी भी सूरत में हो। तो आजकल भी हमारे यहाँ इस्लामाबाद में अफसाने बहुत लिखे जा रहे हैं, और अफसाने सबक आमोज़ भी है, उनमें मैसेजेस भी हैं। इसी तरह शायरी में वो प्योर शायरी गज़ल वाली नहीं रही, गज़ल में बेतहाशा तजर्बे हो रहे हैं, और नात भी वो नात नहीं रही जो पहले नात हुआ करती थी। अब नात में भी बेहतरीन किस्म का अदब तख्लीक हो रहा है पाकिस्तान में, और हर महीने हम नात का मुशायरा करते हैं। वहाँ हमें पता लगता है कि कितनी नई चीज़ें नात के मज़ामीन में आ रही हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पहली दफ़ा शिरकत करके, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ माशाअल्लाह सब अहले अदब लोग मौजूद हैं और अदब से शगफ रखते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। शेर रजा साहब। इसके नावल के ऊपर सारा मुझे अपना बचपन याद आ रहा है कि नावल कुछ ऐसी एक सिन्फ है कि आदमी इज़्वाब हो जाता है। मुझे याद है कि ये शायद 9वीं 10वीं से लेकर BA तक का पीरियड है। मैंने तकरीबन AR खातून के नावल, चंद एक उनके, अपने असमत चुगताई, रज़िया भट्ट, और जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ मिरातुल उरूज से बहुत मुतासर हुआ, डिप्टी नज़ीर अहमद।
फिर दूसरी जो मुझे मुतासर कौन लगी वो थी फिरदौस बनी अब्दुल हलीम शरर की। इसके अलावा अब अगर हम तज्जिया करें तो लिखने वाले बहुत हैं और तो बड़े इम्प्रेसिव उन्होंने लिखा, बड़े अच्छे दिल को बातें लगती। लेकिन अब ये जो सिलसिला कहना रुक गया है नावल निगारी का, उसकी वजह सबसे बड़ी तमसील आ गई। इसको आप रेडियो कह लीजिए या टीवी कह लीजिए या ड्रामे, अब आजकल तो ड्रामे लोगों के पास वक्त नहीं है। मुझे याद है कि न्यूयॉर्क में जब मैं था कुछ अरसा रहा, तो जब वो ट्रेन में सफ़र करते थे, हर चाहे औरत हो या मर्द हो, उनके पास कोई ना कोई किताब रहती है और बैठ के वो पढ़ते। ये हमारे में इस चीज़ की कमी है, तो ये चीज़ हमें उजागर करना चाहिए। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक मालूम, तो हम इस चीज़ से इसको एंजॉय नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो अभी जो मैं इंस्पायर हुआ, डॉक्टर साहब ने जो एक कहा कि हम जो ये बैठते हैं, इसको भी हम जैसे आप हैं माशाल्लाह, आपकी जो जिस तरह से आप लिख रही हैं, आपके पास टाइम भी और माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आप कुछ इसको नावल निगारी के तौर पे, जैसे अब आपने सजेस्ट किया कि जी इसको तारीखी अंदाज से करें, क्योंकि तारीखी नावल भी बहुत, अब नसीम हिजाजी का नावल वो इतना इम्प्रेसिव है कि उसने तारीखी बताया और लोग उसमें डूब जाते हैं। तो ये हमें शुरू करना जी, तो हमें इसको शुरू करना चाहिए कि अब कहाँ से शुरू होगा, क्या कि पहला कतरा बारिश जो है, पहला कतरा बरसात है। तो अब ये डॉक्टर साहब भी अपना आप सजेस्ट करेंगे कि इसको, और हमें मेरा ख्याल है कि इसको लिखने की हमें शुरू कर देना चाहिए। रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। तो बस यही मैं कहना चाहता मैं ये कहती हूँ कि ये जैसे कहते हैं ना, गजल नहीं मरी, अदब भी नहीं मरा। और अदब ऐसी चीज है कि देखिए, उड़न खटोले का तस्वुर जहाज से आया, तिलस्म में होश रुबा लिखी गई, उसे जंगी आप देखी, तो ये तो कभी मरी नहीं। और जो डॉक्टर साहब ने बात की, मुझे मैं आपके लोग साथ देंगे और कारवां बनता गए, ये आपका कारवां है और मैं आपके साथ ही हूँ, मैं इसमें आपके साथ शरीक हूँ। और उसमें एक नाम लिखेंगे, हिजरत की सऊबतें। उसमें जो लोग आए हैं उसमें पहला कौन आया, इसमें मेरी एक दोस्त है नईम फातिमा अलवी, वो तो हिस्ट्री ऑफ गर्ल गाइडिंग हमने बहुत लिखी, उस पर हम लिख रहे हैं, तो इस पर भी लिखा जाएगा। और मैं आपके साथ दूंगी कि हिजरत की सऊबतें, कि पहले कौन आया, उसकी तरफ थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना पड़ेगा कि किस तरह हमारे आबा अजदाद ने आके यहाँ पे अपनी तहजीब को जिंदा किया। बड़ा मुश्किल था ये सब कुछ करना और अपने साथ अपने गोल सेट करना। यहाँ जब आए, कहते हैं जब हमारे मुजाहिद फारूक साहब के, जब मैं आया और मैंने यहाँ माहौल देखा, तो मैंने कहा मुझे अपने गोल सेट करने, किस तरह अपने बच्चों की परवरिश। तो आप लोगों ने तो एक जिहादी लोग हैं जो यहाँ आए और अपने बच्चों की सही तरबियत, तो इस पर तो मैं आपका साथ देने को पूरी तरह तैयार हूँ। बल्कि उसका एक नाम लिखेंगे, हिजरत की सऊबत, और इस किताबी शक्ल में है इंशाल्लाह। ये तस्दीक कर दूं, उर्दू घर में जिहादी लोग शामिल नहीं ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये बात वजाहत कर दूं। कोशिश अब मुझे एडिट करना पड़ेगा, पहला है मुझे एडिट करना पड़ेगा। जिहादी लोग आ सकते हैं, हम उनके लिए सीट्स बाहर लगाएंगे। जिहाद तो कोशिश को कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सईदा उन्होंने डिप्टी नज़ीर की जो डिफरेंट नॉवेल्स की बात की, उस वक्त हम पढ़ते होते सो तौबा तो नसू, आई रिमेंबर के ये तो, लेकिन उस बेस पे मसनून दुआ हमेशा जब मैं पढ़ती हूँ, मुझे डिप्टी नज़ीर का वो मुझे नॉवेल याद आता है, विच इज अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी तौबतन नसूहन मिन क़ब्ल अल मौत। बिल्कुल ऐसे ही और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबका आमीन या ग्रांट मी सिंसियर डेथ बिफोर माय खात्मा और यस डिमाइस। थैंक यू। और दूसरे आपने कहा कि तरक्की पसंद, उसके बाद दौर शुरू हुआ, लेकिन जब ये नॉवेल्स लिखे गए उस वक्त दौर ऐसा था कि देयर वाज नो टेक्नोलॉजी, नो कंप्यूटर, नथिंग, लाइक आपने बोला कि वो सब हाथ से लिखा करते थे, और प्लस दैट वाज टोटली फैंसी। लेकिन मैं डिसएग्री करूंगी ओमकार भाई से अबाउट द हिस्टोरिकल नॉवेल्स, क्योंकि उसमें स्टिल द फिगर्स एंड फैक्ट्स वर और सम इवेंट्स वर स्टिल नॉट फिक्शनल, दैट मीन्स नॉन फिक्शनल, दे वर सम, मैं हिस्टोरिकल की बात कर रही हूँ, जो कि ये नसीम हिजाजी के दे वर वेरी गुड ड्रामास एंड बेस्ड ऑन देयर नॉवेल्स आल्सो। सो यस, हिस्टोरिकल वन
they were, I mean, they fictional, but most likely they were non-fictional also. Maybe some figures and facts were not true, but those were also non-fictional. लेकिन रोमानवी दौर जो उन दिनों बहुत चलते थे, अफसाना और नॉवेल्स जिस माहौल में हम पढ़े, there was everybody, I see that, oh which novel, which Hood and Zeb Nisa and all these novels and अफसाना. So every young बच्चा जो था, no matter the girl or boy, वो they try to copy that, even though that Romanvi novels were total fancy. लेकिन यंग जनरेशन ने जब उसको कॉपी पे करना शुरू कर दिया तो दैट पेरेंट्स बिकेम स्ट्रिक्ट, एंड कईयों ने तो उन्होंने मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि नॉट टू रीड द रोमांटिक नॉवेल्स. भाई कई जो है स्टोरी कर रहे. सो दैट वाज उस वक्त दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट थी, और हम ग्लोबली एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं थे, और ना हमारा माहौल उस वक्त और ना वो द कंट्री उस वक्त जिस कल्चर में थे. दैट्स व्हाई दे डिडंट नो. Based on that I'm talking about that, कि इसलिए रोमानवी जो है रोमांटिक नॉवेल उस वक्त वो जो यंग जनरेशन पे जैसे इफेक्टेड हुए, इसी तरह जैसे आजकल के हमारे जो बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन जो भी है, वो डिज्नी वर्ल्ड की जो फैंसी में रहना चाहते हैं हमेशा. टॉयज, बुक्स, एवरीथिंग हैज टू बी द बर्थडे थीम, एवरीथिंग हैज टू बी दैट फैंसी. सो उस वक्त हम भी उस किस्म की फैंसी से गुजर चुके हैं और इस माहौल से. तो मैं ये उस पे मैं बात करने रही. तो इस तरह के रोमानवी नावल वी कैन राइट अपने बच्चों को, जैसे ये जो फैंसी है इस बेस पे भी लिखी जा सकती है. इट्स जस्ट आई कैन ट्राई आल्सो. बाकी जो हिजरत की सोबतें जो कह रहे हैं जो आए, माय हस्बैंड वाज वन ऑफ दोज, और लेटली उनकी जो बर्थडे हुई तो बेस्ड ऑन दैट मैं सारे उनके जो फैक्ट्स कलेक्ट करके I made special thing for him. He doesn't know even that right now. So that was my goal. कि क्या they went through. यही हम बच्चों को बता रहे हैं. You don't know when your father came, when they went through right now, and they appreciate. And then we took them to a village specially, and as our lunch here, and they were literally crying. Look where we live and where they live. So आपका जैसे सही वाली बात कि हम अपने बच्चों को not only saying ये बातों में नहीं, we need to document these things. So and with the facts, before these facts are gone, we are the first hand information. Not only our husband, wives also, but we went through also. So I'm in the same boat. Based on that, I wrote a poem also. और मैं अपने husband पे, that's why I wrote a poem. Maybe जैसे तैसे, but I wrote. जो मुझे इज़हार करना होता है, I express myself. ये जो शायर है, that's how they take their anxiety out. And yes, I agree with that. We need to work on that collectively. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई. आपके तारीखी पस मंज़र का शुक्रिया. आपने उर्दू के नावल की तारीख शुरू की और तरक्की अदब तक छोड़ा. फनकार साहब की बात है मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया. मेरे नज़दीक नावल जब भी, अव्वल तो नावल अफसाने में जो मेरे नज़दीक फ़र्क है वो ये है कि अफसाना एक ज़िंदगी के स्लाइस की बात करता है, मगर नावल एक पूरे एरा की मंजर कशी करता है. जो अच्छा नावल है, ग्रैंड नावल है, जिसको हम ग्रैंड नावल कहते हैं, जो कि सही मानों में अदब आलिया को दिया तो रशियन नावलिस्ट ने दिया. वॉर एंड पीस से शुरू हुए, आप एना कर्निगा से. आप एक दफ़ा नावल पढ़ लें, आपको लगेगा आप उस अहद में जी के आए. वो होती है मंजर कशी, वो होती है अदब कि आपने पूरा अहद आने वाले लोगों के लिए ज़िंदा कर दिया, और उसको निभाना, वैसा नावल लिखना, ये है असल कमाल की बात. मैं अपनी गुफ्तगू थोड़ा सा बस इसमें महदूद करूँगा उर्दू नावलों में, लेकिन इसके लिए ये कहना कि भाई अच्छा नावल है क्या, तो मेरे नज़दीक तो अच्छे नावल जितने भी आप मिसाल उठाएंगे वो हमेशा बहुत ही कॉन्क्रीटली किसी न किसी तारीख़ी अहद में या किसी इवेंट के साथ जुड़े होंगे. ठीक है, 2020 में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन आपसे अगर कोई बोले 1920 कैसा था, तो सबसे पहले आपके जहन में द ग्रेट गैट्सबी आएगा. उसमें सब फिक्शन है, लेकिन वो बिलीवेबल फिक्शन इसलिए है क्योंकि वो अहद के हिसाब से उन्होंने स्कॉट फिट्जरल्ड ने जो लिखा वो उस अहद के हिसाब से था कि भाई ऐसे लोग जी रहे थे, मार्केट का ऐसा हाल था. एक पूरी अहद की मंजरकशी आपके सामने. कैच 22 लिखा गया वियतनाम वॉर के पस मंज़र में. तो ये हमेशा नावल लिखा जाता है किसी
बड़ी हकीकत किसी मेजर इवेंट को लेके, और उसके ऊपर आप हिस्टोरिकली बिल्ड कर लें, लेकिन वो भी बिलीवेबल होना चाहिए. अनलेस कि आप उसको डिक्लेयर करें कि भाई ये फैंटेसी है, तो फिर वो साउथ अमेरिका में गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने शुरू किया कि भाई ये फैंटेसी है, आप एक कहीं भी फैंटेसी एक एज्यूम कर लें कि भाई ये शहर है जो कि बाकी शहरों से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक कुछ माफूक फितरत चीज़ें होती रहती हैं, और वो उनका लैंडस्केप है. उसमें भी वो कमेंट्री कर रहे होते हैं थोड़े से पस मंज़र में जाके, थोड़ी सी अलामती तौर पे कि भाई जो दुनिया में हो रहा है, उस मुल्क में जो हो रहा है, उसमें सेंसरशिप से बचने के लिए आप उस तरह का सहारा ले सकते हैं. हमारी तरफ जो लिखा गया उसमें बड़े नावल बहुत कम लिखे गए. जो बहुत ज़्यादा अलामती नावल थे वो मकबूल नहीं हुए. डॉक्टर अनवर सज्जाद का भी थोड़े दिनों पहले जिक्र इंतकाल हुआ है, उन्होंने कोशिशें की थी, लेकिन वो उनके नावल ऐसे कामयाब नहीं हुए जो आम लोगों तक पहुंच सके. जो नावल कामयाब हुए वो सबको पता है. अभी मैं पोस्ट पार्टीशन की बात करूं तो आग का दरिया सबसे पहले, उदास नस्लें, तारड़ साहब का राख और बहाव, और ये सब चीज़ें अगेन रूटेड हैं हमारे ख़ास इवेंट में. उसमें आखिर में मैं ख्याल से वैसे तो बहुत उसी बात हो जाएगी, लेकिन हिस्टोरिकल फिक्शन का बहुत जिक्र हुआ. तो हिस्टोरिकल फिक्शन में जो दो नावल स्टैंड आउट करते हैं उर्दू में, वो एक तो दश्त सूस है मेरे ख्याल से जमीला हाशमी का, उन्होंने मंसूर अल्लाज पे लिखा, बहुत बेहतरीन लिखा. और उसके बाद लेकिन जो हिस्टोरिकल फिक्शन को मेराज पे पहुंचाया है वो हमारे शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने पहुंचाया 2006 या 7 में, जो कई चांद थे सरे आसमान नावल जो उन्होंने लिखा है, वो उर्दू पे एहसान किया है कि 1830 से लेके 1850 तक का दौर, अगेन वॉर एंड पीस आप पढ़ लें, कई चांद से सरे आसमान पढ़ लें, दिल्ली का वो दौर, दाग की इब्तिदाई जिंदगी, दाग की वालदा, वो होता है नावल के. ठीक है, हमें पता है इसमें सब झूठ है, या बात सिर्फ एक सफ़े की थी, उसको आपने 600 सफ़ात तक कैसे पहुंचाया, तो वो उनकी अपनी जहन की इख्तरा है, लेकिन वो सारी इख्तरा उस माहौल में उस हिसाब से उन्होंने इख्तरा की है और उसके हिसाब से लिखा है. तो मेरे नज़दीक तो कामयाब नावल ये है जो मुझे उस अहद की अक्कासी करे. और उसके बाद शुरू में इस्लाही नावल लिखे गए. हर हालात की, हर ज़माने की अपनी ज़रूरतें होती हैं. डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि आज हमें तारीख़ी नावल लिखने चाहिए जो कि यहाँ की तारीख़ को रकम कर सके. बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आज की ज़माने की भी ज़रूरत है, उसको भी लिखना चाहिए. उसके अलावा अगर क्या कहते हैं किसी के जहन में कोई वैसे ही ख्याल है, पिछले दिनों हमारे यहाँ कुछ जो अच्छे नावल छाए हुए हैं, उसमें गुर्ग शब और इस तरह के मीरवा की रातें, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन उसके ऊपर जो भी गुफ्तगू हो रही है. मुख्तसर ये कि अच्छा नावल पढ़ने वाले भी कम लोग हैं, उसके लिए एक वसी लैंडस्केप चाहिए. गुलाम बाग के डॉक्टर साहब भी बहुत बड़े फ़ैन हैं. गुलाम बाग लिखा उन्होंने, वो ग्राउंडेड था, लाहौर की उसमें मकामात थे, आप रिलेट कर सकते थे, बहुत मशहूर हुआ. अब उन्होंने ही जब वो लिखा साइबर स्पेस का मुंशी, तो वो किसी की समझ ही नहीं आया कि वो इस कदर उसमें गहरा फलसफा है कि वो नावल वो भी मुनासिब है, अच्छा है, लेकिन वो आपकी आम कारी से फिर परे हो जाता है. जो चीज़ आम कारी से परे हो जाती है वो कभी भी मशहूर नहीं होती. लेकिन हमें नावल हम बहुत कम पढ़ते हैं, उर्दू में ख़ास तौर पर. अंग्रेज़ी में तो बहुत नावल लिखे जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक अभी भी लिखा जा रहा है. मगर हमें खैर पढ़ने भी चाहिए, जो नए आ रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए और उनको जहाँ तक हो सके उनकी पजीराई करनी चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया. जाफरी साहब. जाफरी साहब पास वहीं. आप लोग को जैसे पता है कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है. इंट्रोडक्शन दे दें आप. अच्छा, मेरा नाम है फ़हीम सिद्दीकी. मैं रिसेंटली इट्स अबाउट 2 months हुए मैं मैरीलैंड से मूव हुआ हूँ यहाँ पर. यहाँ मैकनी में मेरा घर है. थैंक यू सो मच. तो वैसे तो मैं बहुत चैरिटी के काम करता हूँ, तो आगे इंशाल्लाह पता चलेगा. लेकिन आज यहाँ आकर यकीन करें कि 2.5 महीने मुझे हो गए, लेकिन एक ऐसा लग रहा है कि किसी अच्छे खजाने पर आके बैठा. माशाल्लाह इतनी नॉलेज मुझे मिल रही है. हालांकि मेरा इतना ज़्यादा ताल्लुक ऐसी चीज़ों से है नहीं, लेकिन अब दिल से ख्वाहिश हो रही है कि मैं भी इस तरफ थोड़ा सा आऊँ, आप लोग से लर्न करूँ, और इंशाल्लाह फ्यूचर में थोड़ी सी एक बात में, अब हो सकता है मैं गलत भी कह रहा हूँ, जैसे कहा आपने कि वो ख़त्म हो चुके हैं नावल निगारिये, लेकिन आप ख़त्म नहीं कह सकते, इसलिए कि आप देखिए जैसे पहले इकबाल साहब सबसे ज़्यादा जानते होंगे, PTV खाली होता था. अब आज नहीं तो 30-35 TV चैनल चल रहे होंगे कम से कम, मैं बात कर रहा हूँ, और 10 ड्रामे रोज़ाना चल रहे हैं, कम से कम 10-12 ड्रामे रोज़ चल रहे हैं. अफसाने होते हैं जो लिख रहे हैं लोग, तो पुराने भी नावलों से भी लेते हैं, लेकिन अभी नए भी लोग लिख रहे हैं.
तो मेरे ख्याल से ये रिलेटेड है, ये है कि जो एक या कहने चाहिए आपका क्वालिटी थी पहले ज़माने की, वो चीज़ इस वक्त नहीं है नए लिखने वालों में, लेकिन ये फिर भी चल रहा है। और मैं अप्रिशिएट करूँगा कि हाँ, हमको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि जो आने वाली नस्लें हैं वो उसको अडॉप्ट कर सके और उसको समझ सके हम लोग क्या थे। थैंक यू। थोड़ा सा ये बता दें कि आप कौन से फलाही काम कर रहे हैं ताकि हम सब लोगों को मालूम हो जाए। वो नाविक के बाद खत्म हो जाए, प्रोग्राम के बाद। ठीक है। आबिद भाई, क्योंकि हम उर्दू से वाबस्ता हैं। हाँ ये भी है जी जी। कैसे है? उर्दू नावल जो मैं बचपन में बहुत पढ़ा करता था, वो इतना पढ़ता था कि लाइब्रेरी जाके पढ़ता था, साथ से निशान लगा करके आ जाता था, फिर उससे जाके पढ़ता था। उर्दू नावल तो बहुत पढ़ी है मैंने, खास करके जो जासूसी नॉवल बहुत पढ़ी है मैंने। रोमानी भी बहुत पढ़ी है। वो दो इकरार नहीं करेंगे। वो नहीं है, वो रोमानी आज का शौक नहीं था। रोमानी आप पढ़ रहे हैं? अब पढ़ रहे हैं। जासूसी के बहुत पढ़ते थे और सिलसिलावार पढ़ते थे और बहुत अच्छा। सबको पढ़ते थे। हाँ। लेकिन उर्दू नावल का जहाँ से तस्करा है तो सालिया ने बड़ी तफसील से बातें की। बहुत अच्छा। अच्छा। और बाकी बातें बाद है बता दिए कि और सब लोग मतलब बताई। तो नावल बड़े शौक से पढ़ता था और वो लाइब्रेरी जाके पढ़ता था, निशान लगा के पढ़ता था। बस यही है। चलो बहुत अच्छा। सही। अच्छा, क्योंकि हम उर्दू से वाबस्ता हैं और उर्दू अदब में ही नावल की इब्तिदा की बात कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं कदीम शहरी अदब में जिन परियों और देव जो होते हैं, देवों के किस्से आम होते थे, यानी कि फिक्शन बहुत आम था। मगर 1857 की जंग आज़ादी के बाद और बाद में सर सैयद अहमद खान की कोशिशों से अवामुन नास को ये बावर करना पड़ा कि इन्हें इस तसव्वुराती और तख़य्युली दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया के मौज़ूआत को अपनी तहरीरों में जगह देनी होगी। अदब ने जब ज़िंदगी के समाजी असरात कबूल किए तो इसके इजहार का ज़रिया दास्तान, कहानी या किस्सा बना, जो कि नावल के नाम से मशहूर है और अदब की एक तरक्की याफ्ता सनफ़ है। 19वीं सदी की छठी दहाई से उर्दू में नावल निगारी का बाकायदा आगाज़ हो चुका था। इब्तिदा के 4 बड़े नाम जैसे कि आपने बयान किए, सदर साहिबा ने बयान किए, डिप्टी नज़ीर अहमद, पंडित रतन नासिर शाद, अब्दुल हलीम शरर और मिर्ज़ा हादी रुस्वा हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद की समाजी बसीरत और उनकी तारीखी शऊर पर उनकी नज़र ने उनको उर्दू का पहला और अहम नावल निगार बनाया, उन्हें तस्लीम कराती है और मरातुल उरूस जो कि उनका बेहतरीन नावल माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पंडित रतन नासिर शाद की। तो पंडित रतन नासिर शाद साहब मीर सैर कौसार, जामे सरशार, कामनी और फसाने आज़ाद के मशहूर नावल निगार हैं और उनके नावल की खूबी लखनऊ का माशरा और जागीरदारा निज़ाम और ज़िंदगी की चहल पहल की अक्कासी है। तीसरे नंबर पे हम अब्दुल हलीम शरर साहब को रखते हैं, जो कि बकौल प्रोफेसर कमर रईस के शरर उर्दू के पहले अदीब हैं जिन्होंने शऊरी तौर पर नावल के फ़न को समझने और बरतने की और नावल की तरकीब में बाज़ अज्ज़ाए तरकीबी का ख्याल रखा है। तो ये उनकी तारीफ है और उनकी वजह शोहरत है कि उन्हें नावल में क्यों उन जगह दी गई है। जबकि फिरदौस बरी उनका मशहूर और मारूफ नावल है और उसके अलावा उन्होंने तारीख़ इस्लाम के वाक़यात को भी खुसूसी अहमियत दी। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं मिर्ज़ा हादी रुस्वा की। इन्होंने नावल की तकनीक को अहम मोड़ दिया, यानी नावल में आप बीती पेश करने का रिवाज दिया। इनका नावल उम्र जानादा को एक ख़ास अहमियत हासिल है जो कि लखनऊ की रोज़मर्रा ज़िंदगी को पेश करता है। तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा तजज़िया पेश किया है कि नावल निगारी में नावल निगारों की क्या क्या खुसूसियात हैं और उन्होंने किस तरह इसको आगे बढ़ाया है।
तो मेरे ख्याल है मैं इसको यहीं पे महदूद करती हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट नशिस्त में हम और बात करेंगे। एक मैं बताना चाहूँगी, वली दखनी को हम भूल गए। वली दखनी से आगाज हुआ था, जैसे नहीं ये नावल शायरी का था। अच्छा नहीं, अभी मेरी बारी रह गई, तो मेरी कुर्सी चेंज कर ली थी, तो मेरी बारी रह गई। नावल निगारी के हवाले से सभी लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर दी, लेकिन एक बात जरूर है, डॉक्टर सलमान ने नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मैं अपनी प्रोग्राम में तो जाहिर है कि उस मौजू के साथ साथ ज़िमनी बातें भी आ जाती हैं जो ज़रूरी होती हैं। तो मैं जो समझा हूँ अपना डॉक्टर आमिर सलमान की बात कि वो इसी के ज़िम्न में ये बात कर रहे थे, वो नावल लिखने को नहीं कह रहे थे कि जी हम सब जो यहाँ आए हैं तो हमारी जो स्ट्रगल है वो महफूज नहीं रहेगी। तो वो एक अलग मौजू है कि मैं आया हूँ तो मैं लिखूँ कि मैं वहाँ क्यों मजबूर हुआ आने को, यहाँ आके कैसे आया हूँ ताकि मेरे बच्चे देखें। ये और बात है कि मैं फिर यहाँ जो हो रहा है उस पर नावल लिखूँ, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें जो आपने कही और आपने, और उसमें जैसे मैं उससे वहाँ कहीं गुफ्तगू राम में हो रही थी तो मैंने कहा जी बात ये है आने के हवाले से कि हल्के फुल्के अंदाज की बात यह है कि मैं 47 में चंद माह का था तो मेरे वालिद मुझे गोद में लेकर पाकिस्तान चले गए। ठीक है, जब मैं बूढ़ा हो गया तो मेरे बच्चे यहाँ ले आए, तो मैंने कहा मसला ये है कि ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से तो ये पस मंज़र होता है कि आप यहाँ आने के लिए बाज़ औक़ात मजबूर नहीं मामूर होते हैं। हिजरत पर मजबूर नहीं थे, हिजरत पर मामूर थे हम। तो बाज़ औक़ात तो ये चीज़ें उस चीज़ों में आती है, वो भी एक लिटरेचर का हिस्सा होगा, मजमून भी एक लिटरेचर का हिस्सा होता है। ज़रूरी नावल तो बात हो रही इसलिए वरना ज़रूरी तौर पर वो बात। तो उसके सिलसिले में अभी भी मैं पाकिस्तान में था तो हमारे कई प्रोग्राम हुए फलां, उसमें जो हमारे मसलन PTV मदर उसके जो बहुत सीनियर लोग जो रह गए हैं, बाकी तो अल्लाह प्यारे हो गए हैं, तो वो ये था फलां, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि बात यह है कि आप लोग अपने मेमोयर ज़रूर लिखें, इसलिए कभी किसी को ज़रूरत होती है तो आदमी तो लिख नहीं सकते आप, ठीक है, आप रिकॉर्ड कर दें, बहुत आसान है। तो वो सब ने एग्री किया, शायद वो अब शुरू करेंगे। तो हम भी यहाँ पर किसी के मजबूर ना हो कि मैं बैठूँ ये लिखें, नहीं, आप ना उठाएं। आजकल तो इतने $20-25 का रिकॉर्डर आता, ऑडियो कभी ट्रांसक्राइब होता रहेगा, पढ़ा तो रहेगा ना। तो अपने अपनी चीज़ें जो हैं, क्योंकि उसमें बहुत से अच्छे वाक़यात होंगे, बहुत सी अच्छी बातें दूसरों की फलाह की होंगी। आप अपने वहाँ आने के महरक़ात से लेके यहाँ कैसे आए, कैसे स्ट्रगल की और अब क्या सूरत है, उसको आप आधा घंटा 1 घंटा बैठ के प्लेन अपनी ज़बान में हर आदमी अगर रिकॉर्ड कर ले तो उसको जमा करके उर्दू घर में हम किसी के साथ किसी को करके, प्रैक्टिकल बात यह है कि हर आदमी को अपना काम खुद करना है। ये उर्दू घर का पहले से ये मौसम रहा है, पहली मीटिंग में ये हुआ था, जो मैंने गुजारिश की थी कि आइडिया दे, तो आइडिया हो रहा था कि उर्दू घर को ये करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, आइडिया ये होता है जैसे मैं दे रहा हूँ कि बच्चों की क्लास होना चाहिए और मैं करूँगा, तो आइडिया होता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, राइट। आइडिया ही नहीं होता कि ये होना चाहिए आप ये करेंगे, आप कोई नहीं करेगा। अपनी जिम्मेदारी से आइडिया दें और उस पर अमल करें। तो ये इंडिविजुअल जिम्मेदारी है हर आदमी की, और यकीनन बहुत नाफे होगी अगर हर आदमी 4 आदमी ला के दे दें कि जी हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो मुमकिन है कि कोई यहाँ बैठ के मैं कहूँ चला मुझे दे दें, मैं उसको फॉर्मेट मजमून की शक्ल में करूँ, चाहे किसी शक्ल में करूँ, या सिंपल तहरीर पे कर दूँ, लेकिन वो फिर हम आगे चल के शायद उसको कंपाइल कर शायद भी करें, तो वो एक इस तरह कहते हैं रिकॉर्ड में आ जाना चीज़, तो आ जाएगी। तो इंडिविजुअल जिम्मेदारी। दूसरी बात मैं फिर गुजारिश बहुत मुअद्दबाना करना चाहता हूँ, किसी की दिल आज़ारी ना हो। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जब आगाज़ हुआ था, मैं चूँकि आमिर सलमान साहब की मोहब्बत की कि उन्होंने शुरू से मुझे साथ रखा है, तो मैं चूँकि साथ हूँ शुरू से, कि ये तय था कि ये तनकीदी नशिस्त नहीं होगी, हम किसी पे तनकीद कर रहे हैं किसी पर भी या एक दूसरे की बात पे, ना ये मुबाहिसे का मौजू हुआ कोई मौजू पे नहीं। तो यहाँ पर भी यही पहले अभी मैंने कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ बहुत मुअद्दबाना कि मैं ये कोई बात करते हैं तो मुझे ये बात इस तरह नहीं शुरू करनी चाहिए कि आपसे इख्तलाफ, आपका नाम आपका जिक्र नहीं करना चाहिए। आप अपनी बात करें कि मेरे ख्याल में तारीख़ी है, ये नहीं कहा कि आपसे इख्तलाफ की वजह से कर रहा हूँ। तो बराए करम किसी से इख्तलाफ किसी का नाम लेके ना करें, ये वही उसी में आ जाता है मुबाहिसे और तनकीद में, तो उससे किसी दिल आज़ारी नहीं होगी। वरना आप कहेंगे फिर दूसरा जवाब देगा, तो वो फिर ये वो फोरम नहीं है। देखिए जी, हमें आपकी इस बात से सख्त इख्तलाफ है।
वो इसलिए कि हम सब यहाँ भाई बहन दोस्त बैठे हैं, यहाँ पे कोई किसी पे कोई भी नहीं उसका तरीका है, सॉरी, जब ये वाइंड अप कर दे ना, फिर आप कहें जी आपने जो प्रोग्राम में बात की थी ये पहले तय हो चुका है, वो जो प्रोग्राम में आप बात कर रहे थे मैं उससे इख्तिलाफ करता या करती हूँ, इट्स ओके, लेकिन बीच में डेकोरम होता है, हर चीज डेकोरम। मूड ऑफ माइंडिंग नहीं मैं तो करता हूँ ना माइंड, मेरी खातिर कर ले, मैं माइंड करता हूँ। सदर है, आप बताइए। मैं ये कह रहा था कि आपने 2-2 मिनट दिए थे सवाल के, इनका सवाल साहब का था, आपने भी कुछ कहना था, तो आप ऐसा करें खत्म करने से पहले लोगों के सवाल तो मेरा ख्याल है मैं अच्छा हुआ गुफ्तगू इस मौजू पे हो गई। तो जिस तरह कुलतुल्लाह शाह साहब ने अपनी किताब के दबाचे में लिखा है, मेरा ख्याल है वो बड़ा अच्छा फॉर्मेट है कि हम एक शख्स अगर लिखे किताब लिखनी शुरू करे तो वो एक दफ़ा पेश की जाए, एक चैप्टर, और उस पर गुफ्तगू हो जाए। और उसमें ये है कि आपको तरगीब भी रहती है कि भाई आपने एक चैप्टर, और वो चीज़ फिक्शनल भी हो सकती है। और जिस तरह इकबाल भाई ने कहा, अगर आप गौर करें तो तालीम, तहजीब, तख्लीक, तहकीक, तनकीद भी इसी वजन में है, मगर हमने उसको उर्दू घर का पहले नहीं बनाया, किसी जान के नहीं बनाया, हमें बता दें, मगर हमने खुद I did not criticize, but इख्तिलाफ राय एक्सप्रेस बाद में और कोई बोलना चाहो पूछना, वरना खत्म करें। भाई आप मैं आपकी इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ जो भी आपने कहा कि जो कुछ भी आप करना, सिर्फ वो बात कहें जो आप कर सकते हैं। सो आई एम किसी सो दूसरे ब्लेस्ड को एंड थैंकफुल। सोशल वर्क है ना, किसी को दूसरे होने के लिए आप ये करें। नो जी हाँ, कि 2 साल पहले मैंने आमिर साहब से दरख्वास्त की थी कि मैं उर्दू घर अरविंग का एक चैप्टर खोलना चाहती हूँ, तो फिर वो मैंने खोला और थैंक्स गॉड कि सक्सेसफुली इट्स रनिंग नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह। जी आमिर साहब, इनको वाइंड अप करा, पहले फिर बात करते हैं। चलिए, आपकी इजाज़त से सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं बहुत ही, मेरी छोटी सी कोशिश थी और खुद मैं अपनी कोशिश से मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे वसाइल बहुत ही महदूद हैं। कुछ अपनी पुरानी यादों पे और कुछ किताबें भी ज़ाहिर है कि यहाँ पे लेटेस्ट नहीं मिलती हैं, जो भी किताबें अवेलेबल थी या इंटरनेट पे थोड़ा बहुत जो मटेरियल अवेलेबल है, तो उसमें मैंने अपनी सी कोशिश की और आप लोगों ने इसको पसंद किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि कुछ लोगों के सवालात थे, पहले था कि वो नज़ीर अहमद के मकसदी अदब की, मेरा ख्याल है कि अब वो दौर गुजर चुका है, उसकी कोई इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। नई नस्ल तो बिल्कुल पंदो नस्ल सुनना ही नहीं चाहती, तो मेरा ख्याल है अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं रही। और अब तो ये दौर है कि हर चीज़ के मेयार भी बदलते रहते हैं। माजी में जो अच्छाई का मेयार था आज उससे बहुत मुख्तलिफ है, तो इसलिए अब कोई आप किसी पे कोई खतगन नहीं लगा सकते कि आप गलत कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है एक पस मंज़र में होती है और फिर उसके साथ ही फिर हमें मतलब एक एहतियात के साथ ही कहना पड़ता है कि भाई दूसरों के नज़रियात का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो इस पर बिलीव करती हूँ। और दूसरा ये कि मैंने जो कोशिश की, ज़ाहिर है मेरा अपना भी जो है, मैं भी एक ख़ास दौर की पैदावार हूँ। देखा जाए तो मैं जिस दौर में मैंने पढ़ना शुरू किया वो तरक्की पसंद अदब तहरीक का दौर था, तो मैंने जो किताबें पढ़ी वो ज़्यादातर, क्योंकि हमारे घर का माहौल भी कुछ ऐसे था कि वही किताबें आती थी तो हम वही किताबें पढ़ते थे। फिर मेरा स्कूल भी जो था वहाँ भी कुछ ऐसे ही माहौल था, तो मैंने कहना ये चाहिए कि दूसरी किताबें मैंने अपने नसाब में पढ़ी, लेकिन शौक़ से ख़रीद के नहीं पढ़ी मैं उस तरह से, तो इससे फ़र्क पड़ जाता है। ज़ाहिर है कि फिर एक इंसान की ज़हनी नशोनुमा वैसे ही होती है जो जिस माहौल की वो पैदावार है। और दूसरे डॉक्टर साहब का ख्याल भी मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन ये कि हर एक को लिखने की तरीक़ा भी नहीं आता, उसके लिए एक जो है लिखने का अंदाज़ है, एक आपका जहन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं मजमून तो लिख सकती हूँ लेकिन मेरा ख्याल है अफसाना लिखना मेरे बस की बात नहीं है। तो जो काम कर सकता है वो करे तो ज़्यादा अच्छा है। अलबत्ता ये ज़रूर है, आप कह रही थी हिजरत के बारे में बेशुमार नावल लिखे गए हैं, एक से एक खूबसूरत नावल है, उसको पढ़ के देखें तो फिर वो अपना एक अदबी मुकाम भी है सबके हर चीज़ का।
تو بہرحال مطلب یہ کہ انسان اصل میں ہم لکھتے کیوں ہیں کہ کوئی واقعہ ہمیں کوئی تحریک دیتا ہے. اب وہ تاریخ سے بھی ہو سکتا ہے, وہ بالکل فکشن بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ایک چھوٹے سے واقعے کو دیکھتے ہیں, وہ آپ کے لیے بہت بڑا محرک بن جاتا ہے, پھر وہ آپ اس پہ کہانی لکھیں, مضمون لکھیں, جو بھی لکھیں. بہرحال تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنا وقت پروڈکٹیو طریقے سے اس کو استعمال کریں, جو کر سکتا ہے وہ کرے, جو لکھنا چاہے. لکھنے کے بھی بہت ساری اصناف ہیں, شاعری ہے, ادب ہے, افسانے ہیں, ناول ہیں, جس میں جس کو کانفیڈنس اور اعتماد ہو کہ میں اچھا لکھ سکتا ہوں, اس کو ضرور لکھنا چاہیے. اور آپ لکھیں, یہاں لائیں, پڑھیں, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی, یہاں پہ بڑی لوگوں نے اس کی کیا کہتے ہیں پذیرائی ہوئی مجھے, جس سے میری بڑی حوصلہ افزائی ہوئی. اور اردو گھر کی تو میں خاص طور پر ممنون ہوں کہ یہ میری ذہنی غذا ہے. یہاں پہ میں یہاں آنا, وقت گزارنا میں پسند کرتی ہوں, اور میری دعا ہے کہ یہ ترقی کرتا ہے. اب یہ آج کی محفل ختم ہوتی ہے, اب آپ کو اجازت, اب چھٹی کی گھنٹی چائے وائے پیجیے. اچھا بھائی, اگلا پروگرام انشاءاللہ اویس نشیز بھائی کریں گے. ابھی مضمون جو ہے آپ مجھے وہاں وہ بتا دیں, ایک آدھ دن بتا دیں گے مجھے. تحریک آزادی میں اردو کا مقام, تحریک آزادی میں اردو کا مقام, ایسا کر دیں گے. اردو تحریک آزادی میں شاعری نثر, ان کا بھی تھوڑا سا تھینک یو کر دیں. آپ کی چائے کی وجہ سے تحریک ہوئی سب کو. بول